Hello students, myself Mohit Pandey. Welcomes to you on my YouTube channel. In this video, I will explain you part 2 of lesson 2 of class 10th science. The chapter is Introduction to Acids, Bases and Salts. I have already taught you the part 1 of this chapter. If you have not seen, you can see in my YouTube channel and the link is added in description box. Now I will explain you the reaction of acids and bases. So now please, reactions of acids and bases. The first reaction of acids and bases with metals. Reactions of acids and bases with metals. So if acid is reacted with active metal, then produce salt, hydrogen and heat. It is the general formula. If reaction of एसिड एंड एक्टिव मेटल, यदि एक एसिड की रिएक्शन एक एक्टिव मेटल से होती है, यदि एक एसिड की रिएक्शन एक्टिव मेटल से होती है, उस केस में सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है एंड हीट जनरेट होती है. एंड फॉर दिस एग्जांपल, hydrochloric acid, it is an acid, hydrochloric acid plus magnesium, it is a metal, produces magnesium chloride and produces hydrogen gas and also heat is generated in this reaction. मतलब एसिड की रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन मेटल मैग्नीशियम से होती है, तो इस केस में सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है एंड विद हाइड्रोजन गैस ऑल्सो जनरेटेड. बेस, अब यदि रिएक्शन होता है बेस का मेटल से, अभी हमने पढ़ा यदि एसिड का मेटल से रिएक्शन होता है, उस केस में क्या होता है, मेटल का सॉल्ट क्रिएट होता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. इफ बेस इज रिएक्टेड विद मेटल, देन ऑल्सो salt, hydrogen and heat is produced in this reaction. If base and metal is reacted, then salt, hydrogen and heat is generated in this reaction. So now sodium hydroxide, for this example, sodium hydroxide, it is a base. Sodium hydroxide, it is a base reacted with zinc, produced sodium zinc oxide. Sodium zinc oxide, it is a salt and hydrogen gas is evolved in this case. So please remember it कि यदि एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उस केस में मेटल का सॉल्ट और से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है इस केस में और हीट भी जनरेट होती है. A more reactive metal displaces the less reactive metal from its base. Also, sodium plus magnesium hydroxide. Sodium, it is a metal. Magnesium hydroxide, it is a base. यदि ऐसे केस में रिएक्शन होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम प्रोड्यूस होता है. मतलब क्या है, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन magnesium. Sodium is highly reactive than magnesium. So sodium displaces the magnesium and in this case also reaction of acids with metal carbonates and bicarbonates. अब यदि एसिड का रिएक्शन, किसका रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन मेटल या तो मेटल कार्बोनेट्स या तो फिर मेटल के बाइकार्बोनेट से होता है, तो क्या होता है इस केस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. सो प्लीज, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, या तो मेटल की रिएक्शन कार्बोनेट से हो रहा है या फिर बाइकार्बोनेट से होता है. ऐसी कंडीशंस में सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. याद रखिएगा आप लोग, मेटल का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट का या मेटल के बाइकार्बोनेट का रिएक्शन यदि एसिड से हुआ तो इस केस में सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है. जबकि इससे पहले हम लोगों ने ये समझा कि यदि मेटल का रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन ओनली मेटल से हो, उस केस में कौन सी गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. इफ मेटल
acid is reacted with metal carbonates or metal bicarbonates, then produces salt, water and carbon dioxide gas. For this example, hydrochloric acid reacted with calcium carbonate, then produces calcium carbonate. It is salt plus water and plus carbon dioxide. Understand? For next example, sulfuric acid is reacted with magnesium bicarbonate and produces magnesium sulfate, water and carbon dioxide. Understand? If effervescence indicates liberation of carbon dioxide gas. The next topic is of this chapter, neutralization reaction. It is a type of reaction of metal oxides and hydroxides with acid. Metal oxide or metal hydroxide are basic in nature. What is neutralization reaction? So if acid and base reacted with each other, then salt, water and heat is generated. मतलब यदि एसिड का बेस से रिएक्शन होता है तो ना एसिड रह जाएगा, ना बेस रह जाएगा. एसिड और बेस दोनों सॉल्ट बनके न्यूट्रल हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मतलब एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है. Sulfuric acid plus magnesium oxide produces magnesium sulfate plus water. And the next example is hydrochloric acid. It is acid. Magnesium hydroxide, it is base and produces magnesium chloride and water. Understand? Reaction of non-metal oxides with bases. Now reaction of non-metals oxides with bases. Then non-metal oxides are acidic in nature. जो non-metal oxides होते हैं वो acidic nature के होते हैं. तो बेस प्लस non-metal oxide, याद रखिएगा, बेस का यदि non-metal oxide से रिएक्शन होता है तो उस केस में salt, water and heat प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, it is a base, and carbon dioxide, it is non-metal oxide. कार्बन इज non-metal ऑक्साइड. तो यदि बेस का रिएक्शन, किसका रिएक्शन? बेस का रिएक्शन यदि आप लोग यहाँ से कंसीडर कीजिएगा कि बेस का रिएक्शन यदि नॉन मेटल ऑक्साइड से होता है तो क्या बनता है? आपका बनता है सॉल्ट एंड वाटर और साथ में हीट भी इवॉल्व होती है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जो दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड, एंड प्रोड्यूस्ड sodium bicarbonate and water. Understand? Acids and bases in water. Now we will discuss about the reaction of acids and bases in water. What will happen if acids and bases are dissolved in water? We can see here, when are added to water, acids and bases dissociate into their respective ions and help in conducting electricity. Understand? यदि एसिड और बेस में वाटर को हम क्या कर दें? ऐड कर दें. ऐसे केस में क्या होता है? एसिड और बेस दोनों ही क्या होते हैं? अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं. अपने अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड, HCl is added into water, then H plus hydrogen, understand, H plus Cl minus and HCl क्या हो रहा है आपका? इधर देखेंगे हाइड्रोजन आयन क्लोरीन आयन में क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है. इसे हम ये होता है यदि क्या होता है एक एसिड को किस में कंबाइन कर दिया जाए? आपका
वाटर में यदि मिक्स कर दिया जाए, वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाए तो, और ऐसे केस में हाइड्रोजन अलग, क्लोरीन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। और यदि डिसोसिएट होते हैं तो इस केस में वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करा सकते हैं। ऐसा सॉल्यूशन यदि एसिड को वाटर में मिक्स किया हुआ है तो इस कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट हो सकती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड एन एल्कलाई। व्हाट इज बेस? बेसिस अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एसिड्स। बेस क्या होते हैं, एसिड के साथ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। दे आर मेटल ऑक्साइड्स, दे आर मेटल ऑक्साइड्स, दे आर कंप्राइज्ड ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, एंड मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो बेस होते हैं मोस्टली केसेस में वो वाटर बस सॉल्युबल नहीं होते हैं। देन एल्कलाई, एन एल्कलाई इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। एल्कलाई क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस, मेनली मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। इट डिजॉल्व इन वाटर एंड डिसोसिएट्स टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। ये जो क्या होते हैं एल्कलाई, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और डिजॉल्व होने के बाद, जबकि क्या होता है बेस, मोस्टली बेसिस जो होते हैं वो वाटर पर डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन एल्कलाई डिजॉल्व होता है। तो डिजॉल्व होने के बाद क्या करता है वो OH नेगेटिव आयन को डिसोसिएट कर देता है, दे देता है, डोनेट कर देता है। ऑल एल्कलाइज, नोट हियर प्लीज, नोटिस दैट पॉइंट, ऑल एल्कलाइज आर बेसिस, सभी एल्कलाइज बेसिस होते हैं, बट नॉट ऑल द बेसिस आर एल्कलाइज, लेकिन सभी बेसिस एल्कलाइज नहीं होते हैं। नाउ हाइड्रोनियम आयन, वी विल डिस्कस अबाउट hydronium ion. Hydronium ion is formed when a hydrogen ion accepts a lone pair of electrons from the oxygen atom of a water molecule. Concentrate that point please. From the oxygen atom of a water molecule, कहीं किसी भी ऑक्सीजन से नहीं, ऑक्सीजन एटम ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब हाइड्रोनियम आयन तब बनता है जबकि हाइड्रोजन आयन क्या कर ले, अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, वो भी किसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन एटम के। और ऑक्सीजन एटम किसका होगा, वो वाटर मॉलिक्यूल का होगा। यू कैन सी हियर इन दिस केस H2O वाटर, हियर ऑल्सो वाटर। और इस केस में ये वाला जो आप लोग हिस्सा देख रहे हैं ये क्या शो कर रहा है, ये पार्ट जो है आपका क्या है, अ पेयर ऑफ, क्या है, लोन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये कौन ले रहा है, ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। और इस कंडीशंस में हम लोगों को आकर के दिखता है इधर, ये आप लोग देख सकते हैं। और जैसे ही क्या करता है ये इधर से, ये यहाँ आप लोग देख सकते हैं इधर से ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जा कर के इसके पास आके सेट हो जाता है और क्या बनाता है यहाँ पर। अभी पहले इस केस में आप लोग देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन से, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम्स कर लेता है। तो इस केस में यहाँ पर आ जाते हैं कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आ जाते हैं। कितने हाइड्रोजन आ जाते हैं, 3 हाइड्रोजन। और 3 हाइड्रोजन आने के बाद क्या बनता है आपका H3O प्लस, क्या बनता है H3O प्लस, और यही हाइड्रोनियम आयन है। और इस केस में यहाँ पर आप लोगों को जो मिलेगा कि इधर से 1 हाइड्रोजन एटम चला गया, हाइड्रोजन एटम जाने के बाद यहाँ पर अब कितने 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या हुआ आपका HO माइनस, जिसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल आयन। HO माइनस इज हाइड्रोक्सिल आयन एंड H3O प्लस इज हाइड्रोनियम आयन। अंडरस्टैंड। Dilution. Next topic is dilution. Dilution is the process of reducing the concentration of a solution by adding more solvent to it. Dilution एक प्रोसेस होती है जिसमें सॉल्वेंट किसका, रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन को कम किया जाता है। यदि
क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, और यदि कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाए तो वो डाइल्यूट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन में। हमने इस टॉपिक को 9th क्लास में स्टडी किया हुआ है। टू इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और डाइल्यूशन प्रोसेस जो होती है क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ, व्हाट इज एक्सोथर्मिक, इफ द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। एसिड और बेस का हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं। स्ट्रेंथ एसिड और बेस, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस किसे बोलेंगे हम लोग, व्हेन ऑल मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर टू फर्निश देयर रिस्पेक्टिव आयंस H प्लस, और एसिड फॉर एसिड H प्लस आयन, एंड फॉर बेस OH नेगेटिव आयन। अंडरस्टैंड, मतलब क्या होता है, जब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स अपने में से डिसोसिएट होकर के क्या दे देता है, यदि एसिड है वो तो क्या देगा, H प्लस आयन को डोनेट कर देता है वाटर को, और यदि क्या है वो बेस है तो OH नेगेटिव आयन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। इस कंडीशन से पता चलता है यदि जो भी एसिड या बेस जितना स्ट्रांग होगा वो अपने में से आयन को उतना ज़्यादा वो दे सकता है। एंड वी विल डिफाइन ऑल्सो वीक एसिड और बेस। वीक एसिड किसको बोलते हैं हम लोग, या बेस किसको बोलेंगे, व्हेन ओनली अ फ्यू ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस डिसोसिएट्स इन वाटर। यदि क्या होता है, थोड़े अमाउंट में ही क्या होता है, वो डिसोसिएट होकर के अपने में से H प्लस आए, यदि वो एसिड है तो H प्लस देगा, और बेस है तो OH माइनस देता है वाटर को। तो इस केस में उसकी पहचान, यदि वो क्या कम देता है तो वीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कर देता है तो क्या होगा, पावरफुल स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, नोटिस दैट पॉइंट प्लीज, कि इफ इट इज एसिड देन एसिड गिव्स H प्लस and base gives OH negative ion. Understand? You can see by this diagram. Furnace of here weak acid. What is weak acid or base? वीक एसिड में आप लोग देख सकते हैं इधर पर यहाँ दिया हुआ AH, क्या दिया हुआ AH, मतलब एसिड ने, किसने, एसिड ने ऑल हाइड्रोजन आयंस को डिसोसिएट नहीं किया हुआ है। तो ये वाला पार्ट जो कहलाएगा इसे हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। मतलब वीक एसिड क्या करते हैं, अपने पूरे हाइड्रोजन्स को, एसिड क्या करता है, पूरे ऑल मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट नहीं करता, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, आप देखेंगे कहीं भी AH साथ में नहीं है, मतलब सभी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स H प्लस आयन को क्या है, डोनेट कर चुके हैं। अंडरस्टैंड। एंड नाउ फॉर बेस, तो बेस में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक क्या हो रहा है, ऑल बेस, यहाँ पर BOH है, यहाँ भी BOH है, मतलब जितना भी बेस था उसने हाइड्रोक्सिल आयन को क्या है, अपने में से अलग नहीं किया हुआ है। तो ये क्या हुआ, वीक हुआ। अगर स्ट्रांग होता तो स्ट्रांग को आप लोग देख सकते हैं इस पार्ट में, जैसे यहाँ पर कहीं भी आप BOH नहीं देख सकते, वो क्या किया हुआ है, BOH सब जगह अलग अलग है, मतलब जितना भी बेस है वो अपने में से OH नेगेटिव आयन को क्या कर चुका है, डोनेट कर चुका है। तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब वीक बेस क्या करता है, सभी OH आयंस को अलग नहीं कर पाता, और जबकि क्या होता है, जो भी क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, OH माइनस आयन को क्या करता है, अपने में से अलग कर सकता है। अंडरस्टैंड। डाइल्यूट एसिड कंटेन्स लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, what is concentrated acid, so now please, concentrated acid contains more number of, ये क्या होगा, जो डाइल्यूट एसिड होगा तो उसमें क्या होंगे, डाइल्यूट एसिड में क्या होते हैं आपके, हैज़ हायर pH, मतलब जो क्या होगा आपका, कंटेन्स लेस नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये इतने सारे एसिड्स दिए हुए, इसमें जो यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू क्या है वो कम होता है, और यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम का जो है क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब ये मान लीजिए आप लोग कि जो डाइल्यूट एसिड होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, कॉन्सेंट्रेटेड कंटेन्स मोर नंबर ऑफ H प्लस, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, H प्लस की वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इधर से, इधर इस केस में वॉल्यूम क्या है, कम वॉल्यूम है, लेकिन H प्लस का वैल्यू इसके कंपैरिजन में, इस पार्ट कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो यदि
क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल से पता चलता है वो डाइल्यूट है कि क्या कॉन्सेंट्रेट है. अंडरस्टैंड. सो नाउ प्लीज फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, for the next topic of this chapter I will come in next video. So please thanks for everyone for watching my YouTube channel. So please subscribe my YouTube channel to get for my upcoming videos for notification. So thanks everyone.